नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले इस पूरे समायोजन के मूल आधार मेरे आत्मीय शांतनु जी का मैं अभिनंदन करता हूं, जो ये मिलेनियम स्कूल तथा श्री विद्या फाउंडेशन के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं जो हम लोगों को इंडिया में भारत दिखा सकता है। I would maybe was planning to speak in English, but then I thought that I think in Hindi. If we are talking about Bharat, then let's talk in Hindi only. On the way, I wrote a small speech also that was in English. Then I thought, a sannyasi is sitting next to me. There's another Mataji, and then my wife is there with me. And when you talk to your wife from your heart, हिंदी बाहर निकलती है। अपॉलॉजीज कि मेरे प्रीवियस स्पीकर को भी थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब किया और बीच में पहुंचा, कुछ समय का और व्यस्तता का कारण बना, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। पर एक बात और सोच रहा था कि कई बार बहुत सारी डेजर्ट्स में बीच में ही अच्छा टेस्ट होता है। So I'm fortunate कि me and Shantanu ji were kind of somewhere in the foundation of seeding this thought. I still remember हिमाचल प्रदेश का पर्वत था और मैं और वो वहाँ किसी एक कॉमन माध्यम से मिल सके। I didn't know that ये मिलेनियम स्कूल आपका है। मजे की बात यह है कि मेरे बच्चे भी उसी में पढ़ते हैं। मेरी माँ के समान उत्तरा मैम वहाँ है और सही बात तो ये है कि मिलेनियम नाम से मैं बाद में गया, श्री राम नाम से मेरे मन में कुछ कुछ धुक हुई थी। आपसे मेरा परिचय हुआ और फिर हम लोगों ने चिंतन बिठाया। I told him about something which my wife manages. She's going to talk about it. It's the Nimai Pathshala. And then we shared some beautiful thoughts. मैं कुछ बातें आपसे रखूंगा। Though I got many different options, topics, subjects to talk on. Respected Uttara ma'am was very graceful to me, I would say. Many options. My approach was a little different. I'm born in an Acharya family, born in Vrindavan, have seen the spiritual tradition since childhood. But there was another issue which became a blessing to me. The tragedy, I shouldn't use the word tragedy, but let me use it because there's no other better option. A tragedy was kind of became a remedy, made me expend myself. That when I was studying in Vrindavan, in a normal school, at that time one of the topmost school was used to run by a missionary. I was there, so I could get a chance to correlate between the two traditions. Because my respected father, respected grandfather
मैंने खूब स्पिरिचुअलिटी का अनुभव किया। बचपन से ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन किया, सानिध्य पाया, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए शायद संभव न हो। गौरांग दास प्रभु जी के गुरु जी से मेरा बहुत आत्मीय संबंध है, बहुत पहले से। उनके भी गुरु जी जो स्कॉन फाउंडेशन के आचार्य हैं, बचपन में वो तक मेरे घर आ चुके हैं। सो ऐसे ही मैं एग्जाम्पल दे रहा था। माय ग्रैंडफादर, माय फादर वाज वन ऑफ दोज रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, गॉट टू मीट ओशो and things like that. I was just giving some references. So coming into that deep-rooted tradition, suddenly I was studying in Vrindavan, then in Delhi University, and then my father wanted me to go to Oxford. Though it was not needed. Generally, if you are coming from an Acharya family, they would like to go to किसी गुरुकुल में जाओ, आश्रम में जाओ। तो वो बोले ये तो घर में ही हो रहा है, वहां जाओ। Generally, a normal approach of everyone is that they study in a routine school and a college and they approach somewhere for a spiritual education. But मेरा थोड़ा पैसिव फॉर्मेट रहा। मैं उस तरफ से रहा। मेरे दादा ने पिताजी से पूछा एक बार कि कोई क्या आवश्यकता है इसको बाहर भेज के पढ़ाने की। तो वो बोले कि वहां पढ़ने वालों की भाषा आ जाएगी, व्यवस्था आ जाएगी, अनुभव आ जाएगा, तो यहाँ की बात कहना आसान हो जाएगा। वो कई बार मुझसे कहते थे, खास मेरे दादाजी, ही वॉज ऑल्सो डबल PhD, ब्रिटिश टाइम में शेक्सपियर इंग्लिश बोलते थे। तो मुझे मजा आ जाता है जब कभी कोई धोती पहना आदमी भी अंग्रेजी बोले और टक्सीरो पहना आदमी भी संस्कृत बोले था। So me and my wife, we both kind of created this Nimai Pathshala, and the beautiful exchanges that she was also in Oxford, but though we didn't meet there. Let me clarify that. So generally hota, it was a college affair. No. Never. It was never a college affair. It was an offer from my respected mother and then she accepted it. So शादी से पहले एक बेसिक जो एक बहुत अच्छी एजुकेशन फ्रॉम चंडीगढ़ टू ऑक्सफोर्ड उसने ली, और फिर वृंदावन में शादी होने से इस तरफ के अनुभव का विस्तार हुआ। मैंने अपने जीवन में इस एजुकेशन को डीप रूटेड लिया और फिर वहां जाके एक एक्सचेंज किया। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमने ये थॉट क्रिएट किया भगवान की कृपा से। इन दोनों संबंधों का अनुभव करते हुए ये बहुत रेवोल्यूशनरी काम है, बहुत रेवोल्यूशनरी। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक आजकल नई चीजें लॉन्च हो रही हैं, साइंस भी क्रिएटिव है, रोज कुछ न कुछ नया आ रहा है। थोड़े सालों पहले कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था, वो चीजें क्रिएट हो रही हैं। मेरे को नहीं पता था कि थोड़े दिन पहले ही मैं देख रहा हूं कि मैं कहीं बैठा हुआ स्पीच दे रहा हूं लाइव। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो यहां बैठा हूं। तो पता चला मेरा AI वर्जन में स्पीच दे रहा था। फिर गुड, इट्स अ नाइस अवतार नाउ। अब और आगे फ्यूचर में तो कहां से क्या क्या होने वाला है। Somebody told me there could be a language seeds kind of a thing कि ठीक है आप you can just learn English by injection or something whatever। तो रोज नई टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रही है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही है। यंग बिल्कुल एंटरप्रेन्योर
20s में बहुत ज़बरदस्त नई जोश में बिल्कुल गांव देहात से आया, मेहनत करी और फिर कुछ ऐसा आइडिया निकला कि बड़ा काम कर लिया। एक गाड़ी खरीद के लाया जोश में। गाड़ी, गांव में पिताजी सब लोग ट्रैक्टर चलाते थे, सब था, तो थोड़ा बहुत अंदाजा था, गाड़ी के विषय में जानता था। जैसे शोरूम से लेकर के निकला, इतने जोश में था। और मैं आपसे एक छोटी बात बताऊं, मेरे साथ भी एक बार ये हो चुका है। थोड़ी देर में एक येलो कलर की लाइट जली सामने स्क्रीन पर। उसने कहा ये क्या है? तो गूगल का जमाना था, पता चला कि गाड़ी इज ऑन रिजर्व, यू नीड द फ्यूलिंग नाउ। अब ठीक है, इतना तो अकल है सब में। किसी फ्यूल स्टेशन पर गया, गाड़ी कोई नई सी थी, बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च थी। अब चक्कर ये पड़ गया कि ये नहीं पता था कि इसमें पेट्रोल डलना है कि डीजल डलना है, और डलना कहां से है, डलना कहां से है, बटन कहां है। बिल्कुल नई गाड़ी लेके आओ, पता नहीं चलता बटन कहां है। अपनी गाड़ी है, और जब उधर के बटन ढूंढने लगा तो फ्यूल स्टेशन वाला बंदा भी सोचता था कि चुरा के तो नहीं लाया है, इसको नई गाड़ी का बटन नहीं मालूम कि कहां से फ्यूल डलेगा। अब बंदा गाड़ी खोल के उतरे, टॉर्च से चेक करे, बटन न मिले। अल्टीमेटली उसने गूगल किया, इतनी लेटेस्ट कार थी कि उसमें प्रीवियस वर्जन का फ्यूल बटन था। उसने वही वाला बटन दबाया तो बॉनेट खुल गया। अब एक और झंझट, दूसरा बटन दबाया तो डिक्की खुल गई। स्ट्रगलिंग, प्लीज कंसंट्रेट विद मी। स्ट्रगलिंग, बड़ी मुश्किल से एक दूसरा परफेक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट आया, and he was struggling. It was already 15 minutes, traffic was jammed, everybody was laughing. आराम से आया, उसने कोई बात नहीं, बिल्कुल स्टीयरिंग के नीचे छुपा हुआ एक बटन रखा था। उसने कहा सामने ही है, बस तुझे दिख नहीं रहा था, तू थोड़ा दूर दूर ढूंढ रहा था, पास ही में है। और जैसे उसने उसको टच किया, क्लक करके आवाज आई, फ्यूल भरने वाला भी खुश हुआ, and he could fill the tank. Now the problem is resolved. What I was trying to say is, I hope many of you already got it, what I mean to say. हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का आधार हमारी खुद की सोल कॉन्शियसनेस है। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मीनिंग ही यही है। हम फिजिकली कॉन्शियस हैं, इमोशनली इंप्रूव हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअली काम हो रहा है, पर स्पिरिचुअल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का अर्थ ही यही है, पीस एजुकेशन, हार्मनी, एक दूसरे से भारत के ट्रेडिशन, सारी परंपराओं को जानने का अर्थ ही यही है कि हम मन और बुद्धि तक नहीं बल्कि चित्त तक भी एक्सेस कर सकें। वो जो एनर्जी का वास्तविक सोर्स है, वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी का इंजन नहीं है, उसका ड्राइवर नहीं है, वो मूल सोर्स फ्यूल है। वो फ्यूल इंजन उस फ्यूल को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है एनर्जी में, और फिर गाड़ी उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है और ड्राइवर उसको मैनेज कर रहा है। जरा सा फ्यूल खराब हो जाता है, इंजन सीज हो सकता है, यू हैव टू रिप्लेस द कार। एक बार हाईवे के ऊपर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लोग बच गए पर गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। 2 मिनट मैं भी रुका, दूसरे दिन मैं जा रहा था उसी रास्ते से, तो कुछ लोग उस गाड़ी के पीछे लगे हुए थे, खड़े थे। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं टूटी गाड़ी पर? पता चला वो उसका फ्यूल निकाल रहे थे, चुरा रहे थे टेक्निकली। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर ही गाड़ी टूट चुकी थी पर अभी भी फ्यूल काम में था, वो निकाला जा सकता था।
ये जो हमारी एग्जिस्टेंस का फोर्थ डायमेंशन है, मॉडल अलग अलग होते हैं। इस पार्किंग में हर गाड़ी का मॉडल अलग है, हर इंजन अलग है, हर ड्राइवर अलग है। कोई 1 करोड़ की भी होगी, कोई 5 करोड़ की भी होगी, कोई 20 लाख की भी होगी, पर फ्यूल सब में एक सा ही डला हुआ है, सब में एक सा है। वो जो स्पिरिचुअलिटी है उस सोर्स ऑफ एनर्जी का एक्सेस देती है। ऊपर से सब कुछ ठीक हुआ, इंजन का फिल्टर ठीक करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। फ्यूल की नॉलेज होने से पूरा एनर्जी का मैकेनिज्म ठीक हो जाता है। और अगर वो पता है तो आज भारत में यही था, टेक्निकल एजुकेशन कितनी होगी, समय के साथ इंप्रूव हुई है। पर अभी भी हम जाएं गांव गांव, देहात देहात, कोने कोने में छुपी हुई जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, किसी न किसी ओल्ड ट्रेडिशन के माध्यम से वो व्यक्ति की नर्व्स में छुपी हुई है। पता नहीं क्यों दूर से हाथी को देखते भी गणेश कहकर आदमी प्रणाम कर ही लेता है। कहीं ना कहीं डीप रूटेड है। इसलिए स्ट्रगल्स ज्यादा होते हुए भी स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा होते हुए भी डिप्रेशन नहीं है। अभी भी दिल्ली से ही 100 किलोमीटर की रेंज में किसी के हाथ में ये पकड़ा दीजिएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। उसको ये नहीं पता कि इसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ाई जाती है, साइलेंट कैसे किया जाता है, फिर भी कोई ना कोई काम बन जाता है। क्योंकि मैं माना इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की लिमिटेशन है, फिजिकल हेल्थ समय के हिसाब से प्रभावशाली हुई है, बट जो फोर्थ डायमेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भारत के ट्रेडिशन की वजह से, उसके मूल ट्रेडिशन की वजह से कहीं ना कहीं उसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिसको उसने एम्पावर किया है। यही बात मैंने शांतनु जी से उस समय शेयर की थी, हम दोनों ने बैठकर डिस्कस किया। तो बोले बिल्कुल ठीक है, बोले एक काम करते हैं महाराज जी, इस बार हम एजुकेशन का फ्यूलिंग सिस्टम लगाते हैं, फिलिंग सिस्टम लगाते हैं। सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा है, एक एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल पा रहा है, पर सेल्फ मैनेजमेंट, today's education may be a manual, a good manual for employment, a good manual for a bit of improvements, a good manual for, I would say, technology, science, but what about the self manual? The whole machine, the whole mechanism. ये जबरदस्त है। मैंने बचपन से इसका अनुभव किया है कोरिलेशन के साथ। पूरा मैकेनिज्म ही विपरीत है। हम जिन राम, जिन कृष्ण, जिनकी कथाओं को सुन रहे हैं, वो सब अंडर 10 तो वो अचीव कर गए जो 35 साल का बच्चा अभी प्लानिंग कर रहा है कि मुझे करना क्या है। कृष्ण की सारी स्टोरीज अंडर 10 है, राम की सारी स्टोरीज अंडर 15 है, और यहां तो अभी 15 साल का बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे फिजिक्स में आगे बढ़ना है कि केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है। यही नहीं समझ में आ रही बात। इसलिए भारतीय परंपरा में एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञान विज्ञान संयुक्तम। भारतीय परंपरा कभी विज्ञान के विरोध में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम वेस्ट में जो क्रिएट होता है वो तो बड़ी बड़ी रिसर्च उस पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैं भी भारत से लेकर एक गांव की शिक्षा में भी रहा हूं, फिर मथुरा पढ़ा विच वॉज अ बिगर, मच बिगर सिटी, फिर मैं दिल्ली पढ़ा विच इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, और फिर बाहर पढ़ा। तो एक गांव जहां साइकिल से स्कूल पर जाने में भी झटका लगता था, वहां से लेकर जहां इस दुनिया की वन ऑफ द प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने का सौभाग्य मिला। इसलिए आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन ये कर सकता हूं, अनुभव के साथ कर सकता हूं। आज अभी मेरे से पूर्व वक्ता गुरुकुल की परंपरा का अद्भुत विवेचन कर रहे थे। इस गुरुकुल शब्द को ही समझना होगा। गुरुकुल शब्द को समझने का अर्थ
केवल इतना सा है कि थोड़ी देर के लिए वो बच्चा आपके कुल का नहीं है. He doesn't belong to you, he belongs to a guru. कुल शब्द का अर्थ होता है lineage, परंपरा, family. He comes from the family of guru. गुरु उसका पूरा ध्यान रखता है. That dedication. पर उसके लिए विद्यार्थियों के साथ शिक्षक की भी स्पिरिचुअल एजुकेशन की उतनी ही अनिवार्यता है, क्योंकि अगर गुरु में ही आध्यात्मिक अनुभूति का प्रवेश नहीं होगा तो ये कैसे संभव है, कैसे संभव है. इसलिए मुझे आज इस बात को जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज मिलेनियम स्कूल और आदि विद्या फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग भी आपके साथ हैं. ये तो आपको पता ही है, बल्कि इसका लोगो या इसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन श्री विद्या फाउंडेशन की, आदि विद्या फाउंडेशन की छतरपुर में एक उत्सव के मध्य पाठशाला के हम लोगों ने भगवान को अर्पित की, संसार को अर्पित की थी. पाठशाला के माध्यम से हम लोग जैसे भी आपके समाधान उसमें कार्यरत हो सकेंगे, we are very obliged and will definitely be there with you, definitely be there with you. Especially शास्त्र. आज वर्तमान समय में हमारा प्रैक्टिस होने वाला कल्चर 80% सुनी बातों के ऊपर निर्भर करता है. जब तक हमारे भीतर हमारे स्क्रिप्चर्स का अवेयरनेस नहीं होगी, आज किसी के टाइटल के आगे एडीवी लिखा हो, हमें पता है उसकी फुल फॉर्म क्या है. किसी के आगे डीआर लिखा हो, उसका फुल फॉर्म क्या है. डीएलटी लिखा हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है. सीए लिखा हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है. एचओएन लिखा हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है. पर मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा, गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, आचार्य कौन है, बहुत वास्ट डिफरेंस है इनमें. शास्त्री कौन है, उपाध्याय कौन है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है. निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज मानवता के लिए ये सबसे बड़ा वरदान होकर उपस्थित हो सकती है. मैं भक्ति की परंपरा से आता हूँ. भक्ति की परंपरा में नवदा भक्ति की प्रधानता है. हम लोग कीर्तन, कथाएं, इसको आप केवल कोई एक रिलीजियस एक्टिविटी मत समझिए, माइंड की सबसे बड़ी ट्रेनिंग का आधार है. 9 भक्तियों के प्रथम 3 चरण हैं श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम. बचपन से हम लोग ट्रेडिशनल संविधान में इन चीज का अभ्यास करते हैं. वी स्टार्ट विथ श्रवणम. एक एजुकेशन के लिए सबसे पहले सुनने की ट्रेनिंग लेना, यही बहुत अनिवार्य विषय है. भक्ति योग की मूल परंपरा है श्रवणम, सुनने की परंपरा का अभ्यास करना. कीर्तनम, फिर उसको बाय हार्ट करने की परंपरा का अभ्यास करना. रिपीटेशन, जो चैंटिंग और डिफरेंट प्रोसेसेस से हम लोग अचीव करते हैं. और स्मरणम, फिर वो बाय हार्ट हो जाना, अंदर स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना. मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. शांतनु जी भीष्म के पिता का भी नाम था, जिन्होंने भीष्म जैसे महामानव को जन्म दिया. मुझे ऐसा लगता है, एक शास्त्र में श्लोक है, जब यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ऋषियों का प्रतिनिधित्व नारद करते हैं, मुनियों का प्रतिनिधित्व शुक करते हैं और मानवों का प्रतिनिधित्व भीष्म करते हैं. इस दृष्टि से आपके माध्यम से भीष्म जैसे कमिटेड, श्रेष्ठ और ऐसे महामानव इस भारतवर्ष में तैयार हो सके, उसी शुभकामना के साथ
मन में तो बहुत कुछ कहने का विचार था। नॉर्मली हम लोग 2-3 घंटा बोला करते हैं नॉर्मली दैट वाज लाइक द नॉर्मल वन तो मैंने बहुत ज़्यादा रायता फैला लिया था, इसलिए मैं थोड़ा आपको जो कुछ कह सका मैंने निवेदन किया। आपने समय दिया उसके लिए वी आर विद यू, ऑलवेज विद यू। लेट्स मेक समथिंग यूनिक जो केवल खुश न कर सके, आनंदित कर सके, जो केवल सफल न कर सके, शांत कर सके, जो केवल सफलता को मैनेज नहीं, नुकसान में भी प्रसन्न रहने की प्रतिभा दिखा सके, जो अलग में भी, अकेले में भी मेला करा सके और मेले में भी अकेला रहना सके। मैं आपको प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ।